Rania, are you there? Yes, sir. Sound All right, we'll be starting the topic business objectives today. So, initially, when we talk about objectives, objective is basically a goal or an aim on which the entire company is working. Like all the workers, all the managers, all the owners, they have a desired aim and they make sure that they're stuck to the same objective. All right. So whenever a company is setting up an objective, it is important that they consider the word smart. Smart over here means that you have to be very clear with this criteria. That is, your objective should be specific. Specific means that it should focus on what the business does and it should apply directly to the business. So it specifies and it is very specific. Example, if we want to say that if we're in a service industry and we are working as a hotel must set an objective of 75% bed occupancy over the winter period. So this 75% is that you're specific about what you want to do. The second thing is that it should be measurable. So it should have a quantitative value. The 75% is uh, a clear mindset that you can measure that. If it's not 75%, that means you're not working on your objective effectively. And if you're achieving more than 75%, that means you're in a good state. The third point is achievable. That means that your objectives should not be impossible to achieve. They shouldn't be pointless, and they should be something that is achievable for by the workers. Otherwise, if it's not achievable, it will actually be a demotivating factors for the entire staff. Then, when we talk about smart, now we're done with SMA, and R stands for realistic and relevant. That means they should be practically possible. All right. So objectives should be realistic when compared with the resources of company and should be expressed in terms relevant to the people who have to carry them out. So you just can't tell them that you have to increase the market share by 50% because it's not realistic. So you'll probably tell them that in the next 5 years we want to increase the market share by 5%, which is practically possible. So R over here is realistic and relevant. And last, it should be time specific. That means that you set up a time limit that we want to achieve a certain objective in this particular time. It can be a year, it can be 2 years, it can be 5 years, but you completely clarify that what we're trying to do over here. All right. So this is how we say that your objectives should be actually smart, and objectives should actually be a detailed plan of action. Basically, when you're aware that what you want to achieve, then only you make a strategy and you make a practical plan of how to achieve that. But the first point for any business should be to set up an objective of what to do. All right. So over here, if you could see this pyramid, that is the hierarchy of objectives that specifies how your objectives are carried out initially. When we talk about objectives, we talk about the individual targets of different people in the company. For example, every worker has its own individual target. I want to achieve better productivity. I want to achieve better promotions, better wages. This is an individual target. Then departmental objectives are, for example, the sales department say that we have to achieve a 10% increase in this year. So
So that is the department, sales department. Marketing department would say that we want to launch a new advertising campaign in the coming 6 months. So this is departmental objectives. When we talk about divisions, divisions are not limited to particular departments. Divisions means that we're talking about the entire division. For example, if we say Sindh division, so we talk about how Karachi, Sakhar, and we want to achieve 20% increase in the sales in the next 4 years in this division. So that means we're talking about this. These three are limited. Now, corporate objective is what you want to achieve. For example, corporate objective is it can be increase in market share, it can be increase in profit. So that is dependent upon the entire company, not limited to one set or one division or one department. It is the entire company what we're talking about. The next is mission. Mission is where you want to see yourself in, like what the company does, how your resources are planned, where do you want to go in the near future. This is your mission. And finally, your aim is why you are into the business. All right. And why, how do you perceive yourself in the coming years? What do you want to do? Why are you here? जैसे अगर मैं ये बोलूं कि एक नॉर्मल कंपनी जो होती है, प्राइवेट कंपनी, उसका इनिशियल एम होता है प्रॉफिट। ठीक है, उसका इनिशियल एम था कि आई वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझते हो, और अगर एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, या जो भी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है, सो दैट company's aim would be to provide services to the community. All right, so this is how we differentiate. अब जो corporate aims होते हैं, the next heading if you could see after the pyramid, corporate aims का काम होता है, they are long term. ठीक है, they are long term aims that that the company wants to achieve in the future. ये बिजनेस की ओम होप है, और यू एक्चुअली वांट कि भाई हम इसको इन द लॉन्ग टर्म इसको कहीं ना कहीं से अचीव कर जाएं। ठीक है, दिस इज द सेंट्रल कोर पर्पस जिसके ऊपर आपकी कंपनी सेटअप हुई हुई है। वो बेशक सोल ट्रेडर हो, वो पार्टनरशिप हो, वो कंपनीज हो, सबके पास एक मिशन और विजन स्टेटमेंट होती है, वेयर दे क्लैरिफाई वेयर दे वांट टू बी इन द नियर फ्यूचर। ऑलराइट, तो ये बहुत जरूरी है। बगैर एम के, बगैर ऑब्जेक्टिव के कोई कंपनी सेट नहीं होती। अगर आप इस चीज को सोचोगे कि कंपनी सेटअप हो जाए एंड देन दे थिंक व्हाट दे नीड टू डू, दैट वुड बी अ ह्यूज फेलियर। दे आर ऑलरेडी देयर विद द फैक्ट कि हमें बस अच्छा, मतलब हमें क्या चीज अचीव करनी है। कई दफा होता है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अचीव करना है। कई लोग कहते हैं कि हमें increase in market share चाहिए। कई companies, because they are just into the business and they're a small scale company, so what they say is that we would like to survive in this market right now, and then we'll think कि how we will go on to grow। ठीक है, so अब आपको इन्होंने बताया है प्रॉफिटेबल ग्रोथ। यूजुअली बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इन्होंने, मतलब ये तो केस स्टडी का एग्जांपल है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनका मेन काम होता है प्रॉफिट कमाना, और उस प्रॉफिट को कमाते कमाते इतना आगे चले जाना दैट यू स्टार्ट ग्रोइंग। ठीक है, उसको आप किस तरीके से अचीव करते हो, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इस केस स्टडी में था दैट यू प्रोवाइड सुपीरियर प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। मतलब आपके प्रोडक्ट्स कंपेटिटर से बेहतर हैं, और कस्टमर जो एक्सपीरियंस कर, मतलब जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो वाओ एक्सपीरियंस है, ही इज वेरी हैप्पी विद वॉट एवर यू डूइंग। फिर यू बिकम अ लीडिंग ब्रांड। आप अपने आप को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी और लीडरशिप, इन चीज पे फोकस करो कि मतलब क्रिएटिव हो, इनोवेट करते रहो, टेक्नोलॉजी यूज करो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इतना ग्रो कर जाओ कि आपकी ग्लोबल प्रेजेंस
हो जाए, मतलब आप ग्लोबली रिकग्नाइज होना शुरू हो जाओ। ये ऐसे ही नहीं अचीव हो जाता, आपके ऑपरेशन अच्छे चल रहे हो। एंड सस्टेनेबिलिटी मतलब ये आप इसको ओवर द टाइम पीरियड रखो। इट्स नॉट लाइक कि आप एक दफा करने के बाद बोलो दैट वी डन। ये ईयर बाय ईयर आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक रेस्टोरेंट ले लें, अगर यहाँ पे कराची में बारबेक्यू टुनाइट इज अ रेस्टोरेंट विच इज ग्रोइंग ओवर द years, तो उसके लिए क्या होता है, why is it growing over the years? Because it has maintained sustainability। हर दफा आपको एक टेस्ट जो है उसी तरीके का मिलेगा जिस तरीके का यू एक्सपेक्टेड। ठीक है। तो ये होता है। और आपके पास फिर लोग होते हैं हु आर इंस्पायरिंग, हु आर परफॉर्मिंग वेल, हु आर मोटिवेटेड, देयर प्रोडक्टिविटी इज हाई, they are passionate, they demand respect, they give respect। वो उनकी इंटेग्रिटी बड़ी हाई होती है। इंटेग्रिटी का मतलब होगा कि they are focused towards their work, and their passion towards their work is very high, and they're disciplined to achieve that। all right, तो इस तरीके से आपको फोकस रहना चाहिए। now when we were talking about the entire setup of uh, corporate objectives, what we need to know is that corporate aims can help develop a sense of purpose and direction for the whole organization। जब भी आप कोई काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टडीइंग बिजनेस स्टडीज, आर एम इज टू अचीव अ गुड ग्रेड। ठीक है, लेकिन अचीव अ गुड ग्रेड के साथ आर एम इज लर्निंग। ठीक है, दोनों चीजें हैं कि भाई हमें समझ भी आए सो दैट आगे जिंदगी में वी गुड एट इट। and apart from that we end up getting a good grade in the CIs। अब इस यू हैव अ पर्पस। ठीक है, आपके पास एक एम है, एक ऑब्जेक्टिव है। आप उस पे फोकस किस तरह करोगे कि नाउ यू विल मेक अ स्ट्रैटेजी। आपके पास एक डायरेक्शन है, तो नाउ यू कैन थिंक अबाउट हाउ टू अचीव दैट। राइट। अब मैं आपको अगर ये बोलूं कि भाई आपके पास एक डायरेक्शन अवेलेबल है कि आपने ए ग्रेड लेना है, तो यू विल डेवलप अ स्ट्रैटेजी कि मैं एक ट्यूशन ले लूं, या मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे डेली इस सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा। देन आई अटेम्प्ट द पास्ट पेपर क्वेश्चंस इन अप्रैल। इस तरीके से यू डेवलप अ स्ट्रैटेजी। ठीक है। और यू कैन असेस योर सेल्फ। जब आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होता है, देन यू कैन असेस योर सेल्फ एट अ लेटर डेट। अगर मैंने अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बना ली थी कि मेरे पास 10 चैप्टर्स फेब्रवरी तक हो जाने चाहिए, और मेरे 10 चैप्टर्स फेब्रवरी तक नहीं हुए, तो I can assess that I am not going on the pace on which I should, and I will not be able to achieve what I need to। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बिजनेस को ये पता चल जाएगा कि भाई विल आई बी एबल टू अटेन द गोल्स और नॉट। अच्छा, फिर ये आपको बता दिया कि एम्स कैन हेल्प यू डेवलप अ स्ट्रेटजी एंड द फ्रेमवर्क जिसके ऊपर आपने काम करना है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म एम नहीं होगा, तो आपके पास एक क्लियर प्लान ऑफ एक्शन फ्यूचर में होगा ही नहीं। और आपके कस्टमर्स, आपकी वर्कफोर्स, उनको ये समझ आ जाएगा कि देर अनक्लियर अबाउट व्हाट टू डू, बिकॉज ऑफ विच दीज कस्टमर्स and your entire workforce, they will be demotivated। मतलब कस्टमर्स भी आते हुए सोचेंगे भाई इनके पास तो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कभी ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कभी दूसरा बना रहे हैं, कभी इस तरह की पैकेजिंग है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर देमसेल्व्स कि हमने क्या करना है। सही है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप क्लियर रहो। नाउ व्हाट इज द मिशन स्टेटमेंट, ये बहुत जरूरी होता है, अक्सर ये पूछ लेते हैं जी मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट क्या है। दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट बाय द बिजनेस ऑफ द बिजनेस कोर एम। मतलब बिजनेस का एम क्या है, और इसको इस तरीके से फ्रेज किया जाता है सो दैट एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड एंड द आउटसाइड ग्रुप्स आर अवेयर। मतलब जो हमने स्टेक होल्डर्स पढ़ा था, दो स्टेक होल्डर्स आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ व्हाट द बिजनेस वांट्स टू डू। ठीक। तो आपने अपने मिशन स्टेटमेंट में क्लियरली बता देते हो कि हमारा कोर एम क्या है,
और उसके अलावा हाउ विल योर एम्प्लॉइज बी मोटिवेटेड एंड अदर ग्रुप्स एंड स्टेक होल्डर्स बी रेडी टू टेक इंटरेस्ट इन योर बिजनेस। ठीक है। अब आप अपना सेंट्रल पर्पस समझो 3 लाइनों के अंदर, स्पेसिफिक ना भी हो इसके अंदर या क्वांटिफाइबल गोल्स ना भी हो, यू जस्ट डिफाइन कि हम करना क्या चाहते हैं, हम बिजनेस में आए क्यों हैं, एंड हाउ विल वी ट्राई टू अचीव दैट। ठीक है। अब इधर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वी विल रीड 2 of them। The first one is an A-level college to provide an academic curriculum in a caring and supporting environment। तो भाई आपका एम क्या है कि आप जो है वो एकेडमिक करिकुलम प्रोवाइड करना चाहते हो, और आपका जो ओवरऑल तरीका होगा वो ये होगा कि वो केयरिंग एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट के अंदर होगा। सो दैट इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट जिसके अंदर क्लियरली डिफाइन कर दिया हम क्या चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है टू इनेबल पीपल इन बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। अब फुल पोटेंशियल ओवर हियर इसका मतलब है कि ना सिर्फ लोग, मतलब customers, they're also talking about how they want their employees to work on their full potential and how they want people to utilize the products of Microsoft in order to achieve better। ठीक है। तो इस तरीके से they make your mission statements। now evaluation of mission statement क्या है आपके हिसाब, they're saying that which one do you think is the best या which one do you think should be changed। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड के मिशन स्टेटमेंट के अंदर ये वाले पॉइंट जरूरी होते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग क्विकली इन्फॉर्म ग्रुप्स आउटसाइड द बिजनेस व्हाट द सेंट्रल एम एंड विजन आर। आपकी जो मिशन स्टेटमेंट है उसको क्लियरली ये डिफाइन करना चाहिए कि हमारा कोर पर्पस क्या है, और वो कोर पर्पस इस तरीके से डिफाइंड हो, अ, वो इस तरीके से कोर पर्पस आपका डिफाइंड हो कि जो जो बाहर के स्टेक होल्डर्स हैं दे आर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है। Second is can provide motivating employees, can prove motivating to employees, especially where statement as a caring and environmental friendly body। So अगेन द सेकेंड पॉइंट बीइंग दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकें। ठीक है। एम्प्लॉयज आपके लिए बड़े जरूरी होते हैं, और एम्प्लॉयज अगर मोटिवेटेड नहीं होंगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली नहीं बनेंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, सेल्स कम होंगी तो प्रॉफिट कम होगा। तो आपकी मिशन स्टेटमेंट में आपने बाहर के स्टेक होल्डर्स लाइक कस्टमर्स, गवर्नमेंट, इन सबको इंक्लूड किया, साथ ही साथ आपने अपने एम्प्लॉयज को भी खुश किया बाय मोटिवेटिंग देम विद दिस काइंड ऑफ अ लाइन। Third is often include moral statements or values to be worked towards, and these can help to guide and direct individual employees' behavior at work। मॉरल स्टेटमेंट्स और वैल्यूज का मतलब होता है कि आप अपनी एथिकल बात कर रहे हो कि हम इन चीजों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, या हम लोग जो हैं वो प्रॉपर किस चीज का ख्याल करेंगे। इफ वी एक्चुअली डू दैट तो आपको ये एडवांटेज मिलता है। इफ यू एक्चुअली डू दैट तो वर्कर्स को भी पता होता है कि हम लोगों का कोर पर्पस तो ये है, और आप मोटिवेटेड भी हो, लेकिन वी हैव आवर एथिकल वैल्यूज और वो हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे विच इज रॉन्ग। ठीक है। उसके बाद जो मिशन स्टेटमेंट है, इट इज नॉट मेंट टू बी डिटेल्ड वर्किंग ऑब्जेक्टिव बट दे हेल्प टू स्टैब्लिश इन द आईज और अदर ग्रुप्स व्हाट द बिजनेस इज अबाउट। बड़ा क्लियरली मिशन स्टेटमेंट जो है वो ये बताना चाहती है दैट मिशन स्टेटमेंट जो है वो आपको ये बताना चाहती है कि आपके वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन सिंपली एक लाइन में आपको बता देते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है। अब कई दफा मिशन स्टेटमेंट्स को जब आप इवेल्युएट करते हो तो आप कहते हो कि भाई बहुत जनरल थी, बहुत वेग थी, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव्स के बड़े अगेंस्ट थी, और ये सब। उसके अलावा बेस्ड ऑन अ पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज टू मेक स्टेक होल्डर ग्रुप्स फील गुड,
कई दफा ये कहते हैं कि ये जान के इस तरह बनाइए सो दैट वन पर्टिकुलर स्टेक होल्डर, वो इन्वेस्टर हो सकता है, वो एम्प्लॉय हो सकता है, उसको खुश करने के लिए बनाइए. Apart from that, it's virtually impossible to really analyze or disagree with. ऐसी मिशन स्टेटमेंट्स भी हो जाती हैं जो मतलब जिसके अगेंस्ट जाना या उसको डिसएग्री करना मुश्किल होता है. often rather uh, often rather woolly in general, so it is common for two completely different businesses to have very similar mission statements. अब क्योंकि अगर बहुत जनरल बना दोगे तो इवन टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज के कंपनीज हो के, एक मैं बोलूं कि एक स्कूल है और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उनकी भी बहुत सारी मिशन स्टेटमेंट्स रिलेटेड हो सकती हैं. ठीक है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली इवेल्युएट देम इन दिस वे. ऑलराइट, मिशन स्टेटमेंट क्लियर है हमें. लेट्स मूव ऑन टू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स नाउ. Yes, sir. कॉर्पोरेट, ओके परफेक्ट. कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, the aim and mission statements of a business share the same problem. They lack specific detail for operational decisions and they are rarely expressed in quantitative terms. तो अब आपने बहुत एक जनरल सी स्टेटमेंट दे देते हो एम और मिशन स्टेटमेंट में. अब उसको टू टर्न इट इनटू गोल्स और टारगेट्स, वो भी स्पेसिफिक. कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स ये होता है. कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स आर डिजाइन टू जस्ट डू दिस. ठीक है, ये आपके एम और मिशन पे तो डिपेंड करता है, लेकिन ये ज्यादा क्लियर होता है. लाइक व्हाट, व्हाई आर यू इनटू द बिजनेस, और एग्जैक्टली हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम डिफाइन कर सकें कि हम क्या मतलब किस तरह का हमारा मैनेजमेंट एक्शन होगा या व्हाट स्ट्रैटेजी विल बी यूज. तो कॉमन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव देखो, सबसे पहले जब भी आप बिजनेस में आते हो एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल और इन अ प्राइवेट सेक्टर, योर फर्स्ट इनिशियल एम इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ऑल राइट. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? दैट यू कट कॉस्ट एंड यू इंक्रीज रेवेन्यू. अब ये बात याद रखो कि सारे स्टेक होल्डर्स बिजनेस में क्यों होते हैं? दे आर वर्किंग फॉर अ रिवॉर्ड. जो ऑन्टरप्रेन्योर होता है उसका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट. जो वर्कर्स होते हैं उनका रिवॉर्ड होता है वेजेस या सैलरी. जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं जैसे गवर्नमेंट के टैक्सेस हो जाते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका डिविडेंड हो जाता है. तो सबको प्रॉफिट या सबको रिवॉर्ड चाहिए. सही है. इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इसको आगे किसी तरीके से अचीव कर सको. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स इट मींस at that level of output where the greatest positive difference between total revenue and total cost is achieved. मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है आसान उसमें कि जितना पॉसिबल आप प्रॉफिट कमा सकते हो, आप उस पॉइंट पे उतनी सेल्स कर दो. ठीक है, कई दफा बहुत ज्यादा सेल्स करना भी अच्छा नहीं होता क्योंकि कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है. वो इकोनॉमिक्स में कभी अगर आपने पढ़ा हो. बहरहाल आप इस पॉइंट पे हो जहाँ पे आपका प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो सके. नाउ what can be the problem with this? अगर आप मतलब सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करोगे तो उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है? द फोकस ऑन हाई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स में इनकरेज कंपेटिटर्स टू एंटर द मार्केट. अब अगर आपको लगता है कि भाई ये तो इस फील्ड में बहुत प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है, हम बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, तो जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, अगर आपने देखा कि एक चीज बहुत ज्यादा बिक रही है तो पीपल स्टार्ट कमिंग इनटू द बिजनेस एंड दे स्टार्ट सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, और फिर आपके कस्टमर्स भी वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज अ प्रॉब्लम. अच्छा, दूसरा ये होता है कि आप प्रॉफिट कमाने के लिए यू ट्राई टू इंक्रीज सेल्स. अब आप अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए आप ये बातों को भूल जाते हो कि भाई मैं किस तरीके से सेल्स इंक्रीज कर रहा हूँ. कई दफा आप सेलिंग प्राइस कम कर दोगे, कई दफा आप गलत तरीके यूज करोगे, कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स विच आर नॉट सूटेड, बिकॉज ऑफ विच शॉर्ट टर्म में तो सेल्स बढ़ जाएंगी लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका ओवरऑल बिजनेस की इमेज खराब हो जाएगी.
ठीक है. The third point is the owner of smaller businesses may be more concerned with ensuring that leisure time is safeguarded. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है दैट यू ऑलवेज फोकस ऑन योर वर्क. यू नीड टू गिव टाइम टू योर फैमिली, यू नीड टू एंजॉय योर लाइफ. अगर आप पूरे वक्त काम ही करते रहोगे कि मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूं, so it will have an adverse effect on your family life, on your health, on your overall time बेसिकली. तो आपको, क्योंकि आप अपने आप को ही टाइम नहीं दोगे, तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत खराब होगा. ओके. और कई दफा लोग कहते हैं दैट वी डोंट असेस ऑन प्रॉफिट, वी असेस ऑन द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो आपने कितना कैपिटल लगाया है और उस हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है इज मोर इज अ बेटर सूटेड इंडिकेशन रादर देन आप ये बोलो कि जी कितना प्रॉफिट हो रहा है. तो इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोई बहुत अच्छा एम है नहीं. ठीक है. ये अपार्ट फ्रॉम दिस रिमेन्स अ गुड पॉइंट फॉर कौन लोग ओनर्स और शेयर होल्डर्स के लिए, तो ये बहुत अच्छा है. लेकिन जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए इट इज डिफरेंट. जैसे आपके मैनेजर्स हैं, वो कहेंगे कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वी वांट द बिजनेस टू ग्रो. हमारे लिए खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करके बहुत कोई खुशी की बात नहीं है. सही है. तो ये वाले पॉइंट्स होते हैं जो इसकी लिमिटेशंस है. नाउ द सेकंड इज profit satisficing. What is profit satisficing? It means aiming to achieve enough profit to keep the owners happy, but not aiming to work flat out to earn as much as profit as possible. देखो, इसका मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का तो मतलब था कि बहुत प्रॉफिट, मतलब जितना पॉसिबल प्रॉफिट है उतना अचीव कर लो. इसका मतलब ऑन दी अदर हैंड ये होता है कि आप इतना प्रॉफिट अचीव कर सको, जितना आप इतना प्रॉफिट अचीव कर सको जितने से ओनर खुश है. ओनर ये फील करता है कि भाई मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि मैं खुश हूँ. ठीक है. और मैं उसके साथ साथ अपनी फैमिली लाइफ भी इंजॉय कर रहा हूँ. मुझे ये भी नहीं है कि पूरा पूरा दिन ऑफिस में बैठना पड़ रहा है. तो जो आपके स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो इस तरीके से चलते हैं. वो कहते हैं भाई एक सर्टेन सेल्स, एक सर्टेन प्रॉफिट कमा के दे दो जिससे हमारा घर भी चलते रहे, वर्कर्स के भी घर चलते रहे, एंड वी आर हैप्पी विद द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी. थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब होता है कि आप अपनी सेल्स या वैल्यू ऑफ आउटपुट पर ईयर के हिसाब से बढ़ा रहे हो. ठीक है. तो ग्रोथ इज पार्ट ऑफ दैट. अब अगर ग्रोथ का क्या एडवांटेज होता है, वंस यू हैव ग्रोन इनटू अ बिगर बिजनेस, व्हाट हैपेंस इज दैट यू स्टार्ट टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेटा मतलब ये है दैट यू आर एक्चुअली कटिंग डाउन कॉस्ट ऑन अ लार्जर आउटपुट. जितना आपका आउटपुट बढ़ जाता है उतनी आपकी कॉस्ट टू प्रोड्यूस दैट, लाइक पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है. इसका मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ. एक तो देखो, जब आप एक होता है परचेजिंग इकोनॉमीज. उसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास बिजनेस बड़ा होता है तो आप ज्यादा रॉ मटेरियल्स खरीदते हो बल्क में. तो बल्क में रॉ मटेरियल्स खरीदने का फायदा ये है कि उनको मिलते हैं, बल्क में रॉ मटेरियल्स खरीदने पर दे गेट डिस्काउंट्स. भाई अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदोगे 100 रुपीज का, तो अगर आप 10 वही प्रोडक्ट एक दुकान से खरीदोगे तो शायद वो 95 का दे देगा. तो आपको 5 रुपए पर यूनिट कॉस्ट पे बच जाएगा. So this is how large businesses wants to grow and get economies of scale. ठीक है. सेकंड एग्जांपल हो सकता है कि लार्ज बिजनेसेस को लोन मिलना बड़ा आसान है, उनके लिए कैपिटल रेज करना बच्चों का काम है. स्मॉल बिजनेसेस बेचारे कहाँ, उनको ना लोन बैंक देता है, रिश्तेदारों से या दोस्तों से लोन लेके दे हैव टू सरवाइव. सो इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू ग्रो. सही है. और ग्रोथ से ज्यादा फायदा ये होता है कि आपके वर्कर्स भी मोटिवेटेड रहते हैं कि भाई हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है. मैनेजर्स आर मोटिवेटेड
So they try to make sure that they're working at their utmost, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सैलरीज बढ़ सकती हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इस तरह से। अच्छा, लेकिन saying that there are some limitations as well. The first one is expansion that is too rapid can lead to cash flow problem. अब मैं एक्सपैंड करने की कोशिश में लग गया तो हो सकता है मैं अपना कैश पूरा फंसा लूं बिजनेस का। ऑलराइट, तो मैं कैश किस तरह से फंसा सकता हूँ? मैं इस तरह से कैश फंसा दूंगा कि मेरा बिजनेस, फॉर एग्जांपल, मैंने हर चीज कैपिटल में इन्वेस्ट कर दी, मतलब मशीनरी में, टूल्स में, तो मेरे पास डे टू डे रनिंग बिजनेस के लिए पैसे ही नहीं है। अच्छा, सेकंड, जो हमने वहां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे भी बात की थी कि आप सेल्स अचीव करने के लिए कई दफा सेलिंग प्राइस कम कर देते हो, विच इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज अगर आप ये कर दोगे ना तो लोग आपको एक चीप ब्रांड ही समझेंगे और वो कहेंगे कि हम इनसे तभी खरीदेंगे जब इनकी सेलिंग प्राइस कम रहेगी या ये सेल पे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आइडियाज बाय गुल अहमद है। अब आप देखते हो कि उनका हर वक्त 70%, 80% ऑफ। आप ये सोचते हो कि मैं इनसे तभी खरीदूंगा जब इन्होंने सेल लगाई हुई होगी। जिस दिन इनकी सेल खत्म होगी, पीपल विल स्टॉप गोइंग इनटू देयर शॉप्स, बिकॉज दे विल से कि भाई ये तो सेल ही लगाते हैं, जब सेल लगी होगी तब ले लेंगे। Okay, the third point is large businesses can experience diseconomies of scale. अच्छा, अभी आप सोच रहे होगे कि सर ने कहा था कि ये तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करते हैं। देखो, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इनके क्या होते हैं कि इनको इतना बिजनेस बड़ा हो जाता है कि इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, ऑब्वियसली बिजनेस जितना भी अच्छा कर रहा हो, इफ इट्स नॉट एडमिनिस्ट्रेड एंड मैनेज्ड प्रॉपरली, दे विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम। मतलब डिफिकल्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ ये कि कोई डिसीजन मेकिंग गलत हो गई, एक तो टाइम बहुत लगेगा डिसीजन मेकिंग में, फिर कोई डिसीजन गलत हो गया तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, एंड इवेंचुअली ऑल दैट प्रॉफिट एंड ग्रोथ विल गो डाउन एज जीरो। ठीक है, फिर आपको उस अदर देन दैट, आप सारे पैसे जो ऐसे सोच रहे थे ना कि हम सब लोगों को बांट देंगे इफ वी अचीव, तो हम स्टेक होल्डर्स को भी दे देंगे और ओनर्स को भी दे देंगे। ग्रोथ के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रोथ का मतलब ये होगा कि वो वाले पैसे जो हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स को आप वापस से बिजनेस में लगा दोगे, तो ओनर्स विल बी हैप्पी कि आप ग्रो कर रहे हो, बट एक्चुअली उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, फिर आप अगर ग्रो करने की बात करते हो तो यू गो ऑन टू डिफरेंट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस एंड एरियाज एंड एक्टिविटीज। इसकी वजह से एट टाइम्स यू मिस ऑन द मेन पार्ट, मतलब जो आपका कोर काम था आप उसको भूल जाओगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज दिस रेस्टोरेंट, कबाबजीज अभी भी है, तो उन्होंने बहुत अच्छा चल रहे थे, सब कर रहे थे, एकदम से उनको ये हुआ कि हम अपना बिजनेस डिफरेंट कर लें, मतलब डाइवर्सिफाई कर लें। उन्होंने वहां बारबेक्यू रेस्टोरेंट के साथ अपना एक चाइनीज रेस्टोरेंट बना दिया। अब उनका फोकस वहां रहा, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। फिर उन्होंने उसी पैसों से वो एक पार्क लगा लिया, स्करी पार्क, जिसमें झूलों वाला, जो फिर बंद भी हो गया था बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। तो अब उनके लिए फोकस मेन रेस्टोरेंट था, उससे हट रहे हैं वो। तो if they fail as a restaurant, it would be because they are not working on their core. They're going into different businesses and setup. सही है। अब चौथा पॉइंट होता है इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। देखो, मार्केट शेयर का मतलब क्या है? मार्केट शेयर इज व्हेन यू, टोटल मार्केट इज 100%, हाउ मच ऑफ दोज 100% में आपकी सेल्स हैं, मतलब 100% में आप कितना सेल कर रहे हो, दैट इज मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर क्या है? इट इज क्लोजली लिंक्ड टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस, इन इज द मार्केट शेयर इट एंजॉयज विद इन इट्स मेन मार्केट। ठीक है, आपके पास कोशिश ये होती है कि भाई मैं जितना ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर रख सकूं उतना अच्छा है। तो बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन, टू गेटिंग अ 10 to 12% मार्केट शेयर इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, इसलिए ये अगर आप मार्केट शेयर ज्यादा अचीव कर रहे हो तो दैट मीन्स इट इज एन इंडिकेशन
that the marketing mix of the business is proving to be more successful than its competitors. मतलब लोग आपकी मार्केटिंग से खुश हैं, आपके प्रोडक्ट से खुश हैं, वो आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप एक्सपैंड कर रहे हो, आपकी नई नई शॉप खुल रही हैं, और उसके थ्रू आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि आपका मार्केट शेयर ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम हाई मार्केट शेयर क्या है? आप एक ब्रांड लीडर बन जाते हो। Now you have the option that retailers will be keen to stock and promote the best selling brand. मतलब अगर मैं बात करूं, मैं एक शैम्पू हूं और मेरा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो सारे रिटेलर्स कहेंगे कि भाई सर आप अपना शैम्पू हमारे पास रखवा दें, और मेरी सेल्स भी बढ़ेंगी, मैं नजर भी हर जगह आऊंगा। ठीक है। सेकंड इज प्रॉफिट मार्जिन ऑफर टू रिटेलर्स मे बी लोअर देन कंपीटिंग ब्रांड। अब मैं उनको ज्यादा कॉस्ट पे बेचूंगा, क्योंकि मेरा ब्रांड तो बहुत सक्सेसफुल है, तो मेरे पास ज्यादा प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी आएगी। Effective promotional campaigns are often based on buy our product with confidence, it's the brand leader. अब आपकी जो भी प्रमोशनल कैंपेन होगी वो ये बड़ा क्लियरली इंडिकेट करेगी कि हम लोग तो लीडर्स हैं इन द मार्केट, सो वी डोंट हैव टू गो फॉर बाय वन गेट वन या कोई सेल वेल। हम तो बड़े रेप्यूटेबल ब्रांड हैं एंड वी विल फील दैट वे। द नेक्स्ट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है, ये यूजुअली स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है, वो भी उस टाइम पे व्हेन दे हैव जस्ट बिगिन। ठीक है, अगर आप स्टार्टअप में ही या स्टार्टिंग पॉइंट पे ही इफ यू फील कि आप सरवाइव नहीं कर पा रहे, मतलब बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन you feel that it's difficult to remain part of the industry, तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन इनिशियल एम ऑफ एवरी बिजनेस इज कि 1 साल 2 साल हम अपनी कॉस्ट किसी हाल कवर करके सरवाइव कर लें। ठीक है, आगे हम ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन चार्ट्स पढ़ेंगे। तो इनिशियल एम होता है कि हम ब्रेक इवन कर लें, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ताकि हम एक्चुअली इस पॉइंट पे हों कि हमें बिजनेस से निकलना ना पड़े। अच्छा, लास्ट एम जो हम अभी कर रहे हैं, नहीं लास्ट नहीं, इनफैक्ट देयर इज वन मोर। सो CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हर बिजनेस की कोशिश होती है कि हम CSR पे चलें। क्या कॉन्सेप्ट है ये? दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू दोज बिजनेसेस दैट कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी for the impact of their decisions and activities on customers, employees, communities, and the environment. तो CSR एक्टिविटीज वो होती हैं जिसके अंदर आप अपनी इकोनॉमी का ख्याल करते हो। ठीक है, इकोनॉमी से मेरा मतलब है कि आप सोशली लोगों का ख्याल कर रहे हो, एनवायरनमेंट का ख्याल कर रहे हो। तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस आर इन्वॉल्व इन CSR एक्टिविटीज। वो ये हो सकता है कि आप ऑर्फनेज विजिट करो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको खाना खिला रहे हो, उनको पैसे दे रहे हो। सो दैट इज पार्ट ऑफ अ CSR एक्टिविटी। ठीक है। इन्वायरमेंट की क्या हो सकती है? आपने गो ग्रीन बोल दिया कि आप ट्री प्लांटेशन कर रहे हो, जगह जगह पूरी आपके एम्प्लॉयज मिलके प्लांट्स लगा रहे हैं। तो ये हर बड़ी कंपनी करती है। ठीक है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास अ, जो और एम हो सकता है वो हो सकता है मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म सेल्स रेवेन्यू। मतलब आप कहते हो कि हमें जो है वो फॉर अ मंथ और टू वी वांट टू इंक्रीज आवर सेल्स। तो उसके लिए यही है कि आपने प्रमोशनल एक्टिविटीज लगा दी, कोई सेलिंग प्राइस कम कर दी, कोई कुछ कम कर दिया, तो उसके थ्रू आपकी सेल्स मैक्सिमाइज हो जाती हैं। और लास्ट इज मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू। इसका मतलब होता है दैट ये लिमिटेड कंपनीज पे होता है, और आपके डिसीशंस और आपकी कोशिश ये होती है कि आपके शेयर प्राइस भी इंक्रीज करे और आप ज्यादा डिविडेंड दे रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो ये कब अचीव हो सकता है? जब आपकी सेल्स भी ज्यादा हैं, प्रॉफिट्स भी ज्यादा हैं, और इंस्टेड ऑफ री इन्वेस्टिंग दैट मनी इनटू द बिजनेस, आप कर ये रहे हो कि आप ये पैसे लगा रहे हो, you are using this money to give back to the shareholders and increase their value.
ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन